Hello students, welcome to our today's session. Today we are going to cover 1.3 from your English textbook, and the title of the poem is Have You Ever Seen? Now really it is very interesting poem, and most of the words which the poet has used in this poem are strange. Why do we find out these words are strange? Because the poet has used homographs in this poem. And all you know very well, homographs consist of the double meaning for that particular word. The spell in the homograph, you find out that for the different words, the spellings are same, but their meaning are different. And the context, in which context these both words are used, could be different. So now in this poem we are going to discuss the same homographs which will make and which will create interest of the reader to read this poem. Let's see and move ahead. The poem Have You Ever Seen, which we are going to discuss in our today's lecture, is written by an anonymous poet. Now in our previous lecture, when we were discussing about the poem, at that one time itself I explained you the meaning of anonymous means an unknown poet. एक ऐसा पोएट जिसे अपने खुद की आइडेंटिटी रिवील नहीं करवानी थी. Okay, for such types of poet we call an anonymous. Okay, now let us see what's in this poem and why the poet has used homographs in this poem. What's the reason behind it? And whenever we do find out the poetical line consists with a homograph, it means this poetical line belongs to a figures of speech, and that is pun. In the figures of speech pun, we find out that a particular word, a single word which used in this poem to convey double meaning. It's called a pun, definitely. Now let's see what's in this poem. And one of the important thing which I would like to talk with you, each and every line consists with a homograph in this poem. Let's see which are the words which denote us a homograph. Let's see. Have you ever seen a sheet on a river bed or a single hair from a hammer's head? Has the foot of a mountain any toes? And is there a pair of garden hose? Now let's see the explanation of very first stanza. In the first stanza, the poet talks about, the poet asks the questions, various questions the poet is asking. Each and every stanza carries with the questions. हर स्टेंजा में हम लोग यहाँ पर देख रहे हैं कि क्वेश्चन पूछे हुए, हर लाइन में आप ऑब्जर्व कर सकते हो. Each and every line is asking us a question. And in the very first line, in the beginning of the poem, the poet asks us a question, and the question is that, have you ever seen a sheet on a river bed? क्या तुमने कभी एक नदी के तल पर एक चादर को देखा है? क्या तुमने कभी एक नदी के तल पर एक चादर को देखा है? कैसा सवाल पूछ रहे हैं यहाँ पर? यहाँ सवाल कर रहे हैं. इस सवाल में हम लोग देख सकते हैं द वर्ड बेड. ये जो बेड, ये वर्ड इन्होंने यहाँ पर इस्तेमाल किया हुआ है, ये है एक होमोग्राफ. कैसा रहा होमोग्राफ? लेट्स सी. बेड का जो पहला मीनिंग हम लोग ले सकते हैं, अ पीस ऑफ फर्नीचर. आप जानते हो, अ पीस ऑफ फर्नीचर, फॉर द पर्पज ऑफ अ पीस ऑफ फर्नीचर वी यूज द वर्ड बेड. And here in this poem, the poet has taken a different sense, bottom of river, नदी का तल. नदी के तल के लिए उन्होंने इस वर्ड को इस्तेमाल किया हुआ है. एंड फॉर दैट पर्पज वी कैन गेट द मीनिंग ऑफ दिस लाइन. व्हाट? क्या तुमने कभी एक नदी के तल पर एक चादर को बिछी हुई देखा है? Now let's see the second line. Or a single hair from a hammer's head.
नाउ इन दिस सेकंड वन लाइन वी फाइंड आउट द होमोग्राफ हेड। सेकंड वन लाइन में हेड ये हमारा होमोग्राफ है। यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि हेड, सबसे पहले तो हम लोग कह सकते हैं कि हेड ऑफ अ पर्सन, एक व्यक्ति का सिर, हेड बोल करके सबसे पहला मीनिंग हम लोग यहाँ पर ले सकते हैं। और दूसरा मीनिंग इस पोएम के ज़रिए से, जैसा होमोग्राफ हमने देखा है, सीखा है, तो वैसा मीनिंग यहाँ पर अगर हम लोग लेंगे तो टॉप, ओके, किसी वस्तु का, किसी चीज़ का टॉप ऑफ द पार्ट, उसका टॉप ऑफ द पार्ट के लिए भी हम लोग हेड इस वर्ड का इस्तेमाल करते हैं। तो यहाँ पर पोएट वही कह रहे हैं, और अ सिंगल हेयर फ्रॉम अ हैमर्स हेड। क्या आपने कभी आपके ज़िंदगी में एक हथौड़े के सिर पर एक भी सिंगल बाल देखा है? हैव यू एवर सीन इन योर लाइफ अ हैमर हैज़ हेयर? क्या कभी आपने देखा किसी हैमर को बाल, हैमर के स्पेशली सर पे बाल, क्या कभी आपने देखा है? Has the foot of a mountain any toes? Now here in this poetical line, foot, the word is gives us the homograph. सबसे पहला मीनिंग उसका हम लोग देखते हैं, फुट ऑफ अ ह्यूमन बॉडी। टोज को हम लोग अगर बात करते तो ह्यूमन बॉडी का एक क्या है, फुट का हिस्सा है। सॉरी, फुट ये वर्ड को देख रहे हैं हम लोग इसमें, होमोग्राफ, एज अ होमोग्राफ बोल करके। तो इसमें हम लोग देख रहे हैं कि फुट ऑफ अ ह्यूमन बॉडी। और यहाँ पर इस पोएम में इस होमोग्राफ, ये जो वर्ड फुट है, इसको इस्तेमाल किया है द लोवेस्ट पार्ट ऑफ माउंटेन, माउंटेन का एकदम तल वाला हिस्सा। तो क्या कभी आपने आपके ज़िंदगी में एक माउंटेन के पैर को, उसके पैर के अंगूठे को देखा है? हैव यू एवर सीन अ माउंटेन्स फुट कैरीज और हैज़ toes? And is there a pair of garden hose? Now here the word hose has a homograph, gives us a homograph, and the very first meaning of that word hose is a flexible pipe. A flexible pipe which we use in the garden for especially watering, पानी देने के लिए गार्डन में पेड़ को हम लोग जिस पाइप का इस्तेमाल करते हैं उस पाइप को भी हम लोग होज कहते हैं। और यहाँ पर जो पोएट इस वर्ड को हमको बताना चाह रहे हैं, तो यहाँ पर इसका क्या मीनिंग होगा इस वर्ड का, होज का? पेयर ऑफ सॉक्स। तो क्या कभी आपने आपके ज़िंदगी में, हैव यू एवर सीन इन योर लाइफ इज देयर अ पेयर ऑफ गार्डन होज? क्या गार्डन के, क्या कभी आपने आपके ज़िंदगियों में देखा है कि एक बगीचे के पास भी मोजों का झोला है? क्या कभी आपने इस चीज़ को अपनी ज़िंदगी में देखा है? ये सवाल हमसे यहाँ पर पूछा जा रहा है। लेट्स सी द सेकंड स्टैंजा। डज द नीडल एवर विंक इट्स आई? व्हाई डजंट द विंग ऑफ अ बिल्डिंग फ्लाई? कैन यू tickle the ribs of a parasol or open the trunk of a tree at all? Let's see the explanation of this stanza. Does the needle ever wink its eye? Very firstly, let's see the homograph in this poetical line. The word I gives us homograph. How? Let us see. The very first meaning of this word I is a part of human body, as you all know. And here the poet gives us the meaning for I is needle hole. Needle, you all know well about the needle, एक सुई जिसमें हम लोग धागा पुरोते हैं किसी फटे हुए चीज़ को या फिर कपड़े को सीने के लिए। Does the needle ever wink its eye? तो पोएट यहाँ पर हमको सवाल करते हैं, कहते हैं कि क्या सुई कभी अपनी आँख झपकती है? क्या पूछ रहे सवाल? क्या सुई कभी अपनी आँख झपकती है? Why doesn't the wing of a building fly? अगली वाली नेक्स्ट वाली लाइन में हम लोग देखते हैं द वर्ड विंग गिव्स अस द होमोग्राफ। द फर्स्ट वन मीनिंग फॉर द विंग इज पार्ट ऑफ बॉडीज, पार्ट ऑफ अ बॉडी पार्ट ऑफ अ बर्ड्स बॉडी। हम लोग पार्ट ऑफ द बर्ड्स बॉडी के लिए इस वर्ड को हम लोग इस्तेमाल कर सकते हैं। और दूसरा अगर यहाँ पर हम उसका मीनिंग लेंगे तो पार्ट ऑफ अ बिल्डिंग, बिल्डिंग का एक हिस्सा जो होता है। मैं विंग नंबर फर्स्ट में रहता हूँ, विंग नंबर सेकंड में रहता हूँ, ऐसा सुना होगा आप लोगों ने। तो फॉर दैट पर्पज़ आल्सो वी पीपल यूज़ द वर्ड विंग। सो यहाँ पोएट फिर से हमें कहते हैं कि वाई डजंट द विंग ऑफ अ बिल्डिंग फ्लाई? तो जिस तरीके से किसी बर्ड के विंग्स फ्लाई करते हैं वैसा ही बिल्डिंग्स के विंग फ्लाई क्यों नहीं करते हैं, क्यों नहीं उड़न भरते हैं?
यहाँ पर सवाल कर रहे हैं हमसे, कैन यू टिकल द रिब्स ऑफ अ पैरासोल। नेक्स्ट वाली लाइन में कहते हैं कैन यू टिकल द रिब्स ऑफ अ पैरासोल। लेट्स सी द होमोग्राफ इन दिस पोएटिकल लाइन, रिब्स इज द homograph. Let's see the meaning. The very first meaning we can call curved bones articulated in pairs to the spine. Okay, and here the poet talks about curves umbrella for the parasol. क्या कहते हैं, देखो ये पोएट कहते हैं कैन यू टिकल द रिब्स ऑफ अ पैरासोल, क्या आप एक छाते की पसलियों को गुदगुदी कर सकते हैं। टिकल मतलब गुदगुदी करना, रिब्स ऑफ ए पैरासोल मतलब छाते की पसलियाँ। रिब्स मतलब हम लोग पसलियों के लिए वर्ड इस्तेमाल करते हैं, बट यहाँ पर पसलियाँ छाते की नहीं, तो छाते को जो स्टील का और आयरन का जो एक पतला सा बारीक सा डंडा होता है, फॉर दैट ही हैज़ यूज द वर्ड रिब्स। ओके, तो क्या कभी आपने किसी छाते के पसलियों को गुदगुलियाँ करते हुए देखा है, और ओपन द ट्रंक ऑफ अ ट्री एट ऑल। नाउ इन दिस लाइन वी हैव अ होमोग्राफ that is what trunk. ट्रंक यहाँ पर होमोग्राफ बोल करके इस्तेमाल किया गया है। लेट्स सी द डिफरेंट मीनिंग ऑफ दिस वर्ड। ट्री ट्रंक, जो झाड़ का ट्रंक होता है उसके लिए एक वर्ड इस्तेमाल होता है ट्री ट्रंक, और दूसरा पार्ट ऑफ अ कार। पार्ट ऑफ अ कार किसी कार के हिस्से के लिए भी इस्तेमाल होता है, जैसे कि कार का हम लोग डोर ओपन कर करके क्या करते हैं, अंदर जाते हैं बाहर आते हैं। ओके, सो वैसा यहाँ पर हमसे वो सवाल कर रहे हैं, हमसे पूछ रहे हैं या एक पेड़ के तने को खोल सकते हैं, या फिर हम एक पेड़ के तने को खोल सकते हैं, जैसे कि हम किसी कार को खोल सकते हैं, कार के तने को खोल सकते हैं, तो वैसे ही क्या हम लोग किसी झाड़ के तने को, पेड़ के तने को खोल सकते हैं। एक अजीब सा सवाल फिर से वो हमारे सामने पूछते हैं। लेट्स सी द लास्ट स्टेंजा, व्हाट्स इन दिस। आर द टीथ ऑफ अ रेक एवर गोइंग टू बाइट, एंड आफ्टरवर्ड हैव द हैंड्स ऑफ अ क्लॉक एनी लेफ्ट और राइट। Can the garden plot be a deep and dark, and what is the sound of the birch bark? Let's see the explanation. Are the teeth of a rat ever going to bite? Let's see the homograph in this poetical line. The homograph is teeth. The teeth, you know well, human teeth, इंसानों के जो दांत होते हैं उसके लिए इस्तेमाल होता है। दूसरा टीथ ऑफ रेक, जो रेक के दांत होते हैं, जिसको हम लोग मोस्टली गार्डन में वगैरह इस्तेमाल करते हैं सफाई के लिए वगैरह। सो उस तरीके के टिथ के लिए लकड़ी का बना हुआ होता है। ओके, उस तरीके के टिथ के लिए हम लोग यहाँ पर रेक ऑफ टिथ भी कहते हैं उसको। आर द टिथ ऑफ अ रेक एवर गोइंग टू बाइट। तो जिस तरीके से हम ऑब्जर्व करते हैं हमारे दांतों से हम किसी चीज़ को बाइट कर सकते हैं, तो क्या फिर से हमारे सामने सवाल किया जा रहा है कि एक रेक के दांत कभी काट सकते हैं। रेक के दांत जो है कभी हमको काट सकते हैं, जैसा इंसान के दांत काटते हैं। हैव द हैंड्स ऑफ अ क्लॉक एनी लेफ्ट और राइट। लेट्स सी द होमोग्राफ इन दिस लाइन। द वर्ड होमोग्राफ इज हैंड्स। द फर्स्ट वन मीनिंग फॉर द हैंड इज हैंड्स ऑफ अ ह्यूमन बॉडी, एंड अनदर वन विच वी हैव टू टेक हियर हैंड्स ऑफ क्लॉक, जो घड़ी के हाथ होते हैं उसके लिए इस्तेमाल किया। पोएट कहते हैं हैव द हैंड्स ऑफ अ क्लॉक एनी लेफ्ट और राइट। यहाँ पोएट हमसे पूछ रहे हैं घड़ी के हाथ कभी बाएं या दाएं हो सकते हैं। घड़ी के हाथ कभी बाएं या दाएं हो सकते हैं, यहाँ पूछ रहे हमसे सवाल। आगे लाइन में पूछते हैं कैन द गार्डन प्लॉट द डीप एंड डार्क। नाउ हियर द वर्ड प्लॉट इज होमोग्राफ। द फर्स्ट मीनिंग फॉर द प्लॉट इज स्मॉल एरिया ऑफ ग्राउंड। आप सभी जानते हैं प्लॉट जो हमारा एक छोटा सा प्लॉट होता है उसके लिए भी हम लोग प्लॉट वर्ड इस्तेमाल करते हैं। नाउ अनदर वन मीनिंग फॉर द प्लॉट इज प्लॉट ऑफ अ स्टोरी, कहानी की साजिश बोल करके भी हम लोग इसको इस्तेमाल करते हैं इस वर्ड को। तो पोएट फिर से हमें क्या पूछ रहे हैं इस वाली पोइटिकल लाइन में कि बगीचे की जगह कभी गहरी और अंधेरी साजिश कर सकती है। बगीचे की जो जगह होती है, गार्डन की जो जगह होती है, क्या वो हमारे साथ कभी गहरी साजिश कर सकती है, जैसे कि इंसान करते हैं गहरी साजिश। क्या उस तरीके की साजिश कभी गार्डन की, बगीचे की जगह कर सकती है। एंड इन द लास्ट वन पोएटिकल लाइन द पोएट स्पीक्स एंड व्हाट इज द साउंड ऑफ द बर्ड्स बार्क। बर्ड्स इट्स अ ट्री, बार्क उसकी साल को कहा जाता है। नाउ हियर द वर्ड बार्क इज आवर होमोग्राफ। लेट्स सी द मीनिंग साउंड ऑफ अ डॉग। सबसे पहला बार्क का मीनिंग हम लोग क्या लेते हैं, साउंड ऑफ अ डॉग, कुत्ते का जो भौंकना होता है उसको बार्क कहा जाता है। एंड दूसरा मीनिंग जो हमको यहाँ पर लेना है हार्ड कवर ऑफ ट्री, झाड़ का जो हार्ड कवर होता है उसको
बार कहा जाता है, जैसे कि हम उसको साल भी कहते हैं. सो एंड व्हाट इज़ द साउंड ऑफ द बर्ड्स? बार. नाउ हियर पोएट टॉक्स. और पेड़ की जो छाल होती है, छाल की आवाज़ कैसी होगी? पेड़ के छाल की आवाज़ कैसी होगी? पोएट यहाँ पर फिर से एक सवाल हमारे सामने पेश करते हैं. नाउ इन दिस वन पोएम वी हैव सीन दैट मोस्टली द पोएट हैज़ यूज्ड the interrogations in this poem. I hope that you all guys understood well of this poem. So let's stop here. Thank you. Have a nice time. Bye.